Okay guys, in last session we discussed about the collision along a one single direction. Okay, if two objects are moving along the same direction in opposite along the same line in opposite direction, then both those objects are collide to each other, and we solve some problem based on this. In this session we discuss about the condition of collision in a plane. Plane मतलब आप टू डायमेंशन काउंट करो. Plane means what? Any two dimension. Okay, if two objects are moving in a plane, then how they are collide, and what is the required condition to collision of these two objects. Let's understand one simple situation, and we discuss about this case in a previous session during a vector. Okay, let's see. First simple situation. Suppose here consider it's a plane. One object is somewhere here A, another object is somewhere here B. So A is moving in a plane with the V1 at some angle theta 1, and B is moving in a plane with some speed V2 at angle theta 2. ऐसे कुछ कंडीशन दी हुई है, ठीक है. So if they are collide to each other, then where they are collide, so if A is moving along this one and B is moving along this one, so this both objects are collide, actually collide at this point. ओके अगर सही में है दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन करने वाले हैं, तो फिर कहाँ पे कोलिजन होगा? इस पॉइंट पे कोलिजन पॉसिबल है तो यहीं पे होगा, और कोई पॉइंट्स पे कोलिजन होगा नहीं, ठीक है. सो दिस वन इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कोलिजन. दिस इज व्हाट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कोलिजन. ये वहाँ पे कोलिजन होने वाला है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस पता है, कुछ भी पता नहीं यहाँ पे, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सोल्व कर नहीं सकते, ठीक है. तो एंड वी यूज द रिलेटिव कंसेप्ट हियर, हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो द सिंपल सिचुएशन यू हैव टू कंसिडर हियर. लेट्स सी, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द सेम फिगर अगेन. यहाँ पे कोलिजन होने वाला है, लेकिन हम कहीं और जगह पे कोलिजन करते हैं. ओके, बाय द यूजिंग ऑफ रिलेटिव मोशन. लेट्स सी, दैट्स द ऑब्जेक्ट्स A एंड हियर इज द ऑब्जेक्ट्स B. ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है, तो ये कहीं पे यहीं पे यहाँ पे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? V1 से जा रहा है. B यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? V2 से जा रहा है. दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस एंगल इज थीटा 2 एट्स गिवन हियर. ओके, नाउ if they are both this are collide to each other at this point, so you consider suppose any one of this objects is coming to rest. ओके, तो मान लो कि B रेस्ट पे है, तो इसको रेफरेंस फ्रेम दे दो. तो अभी ये को अगर B से कोलिजन करना है तो कहाँ पे जाना होगा? ऐसे इस डायरेक्शन में जाना होगा, इस मतलब प्लेन लाइन स्ट्रेट लाइन में, मतलब A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, ठीक है. अब इनिशियली B इज मूविंग अलोंग दिस वन, बट राइट नाउ वी कंसिडर दिस B इज एट रेस्ट. तो A को किस डायरेक्शन मूव करना होगा? सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना होगा, तो फिर यहाँ पे B के साथ कोलाइड होगा. तो फिर A को स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन इन अ प्लेन, ठीक है. चलो, तो फिर इसको आपने रेस्ट पे लेके आए, तो इसकी वेलोसिटी किसको देनी है? द वेलोसिटी ऑफ B गिव्स टू द A इन अपोजिट डायरेक्शन. अभी ये इस डायरेक्शन में है, तो फिर A को इस डायरेक्शन में दे दो कहीं पे. कितनी वेलोसिटी है? V2. कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ? ओके, व्हाट इज दिस एंगल हियर एक्चुअली? So this angle is theta 1 and this angle is theta 2 given. Okay, so this type of situation. Now you just take a component of V1 and V2 along this line. अभी A को इसी डायरेक्शन में मूव करना है. A must be moved along a straight line towards the B so that A is collide to the B. Why? Because now B is coming to rest. We assume this B is coming to rest. Okay, if B is at rest, then A is moved along this line so that A is collide to the B. So this is we have to require some condition here. Okay, so take a component of V1 along this line. तो A V1 का component ले लो. So first component of V1 cos theta 1, and second component is what? V1 sin theta 1. Now you just take a component of V2 also. So say this component of V2 along this line. What is this? V2 cos theta 2. This component adjacent to the theta, and component perpendicular to the theta. Okay, opposite side. So that is V2 sin theta 2. Okay, so now
if this both those components are cancelled to each other, then net velocity of A, net relative velocity of A is along this line. See, this net velocity along this line, मतलब कि अगर ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं, अपोजिट है, तो फिर नेट वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी और ए बी के साथ कोलाइड होगा. ये क्या होगा? बी के साथ कोलाइड होगा. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन इन अ प्लेन. सो लेट्स वी राइट द कंडीशन ऑफ कोलिजन. सो कंडीशन of collision, this both the components are must be the same. It means, and this component is a perpendicular, actually line यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाना है, ये perpendicular component. So perpendicular component of velocity, perpendicular component of velocity must be equal and opposite, must be equal and opposite. So they are cancelled to each other, and net relative velocity of A with respect to B is along this line. Okay, so condition of collision is what? Perpendicular component of both velocity, components of both velocity are cancelled to each other. What is the meaning of cancelled to each other? Means equal and opposite to each other, मतलब वो दोनों सेम ही रहने चाहिए तो ये कैंसिल होने वाला. और अगर इसको कैंसिल करना है तो फिर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे v1 sin theta 1, दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू v2 sin theta 2. सो दैट इज अ कंडीशन ऑफ कोलिजन. इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ कोलिजन. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर कैंसल टू ईच अदर. ओके, सो दिस वन इज नोन एज अ कंडीशन ऑफ कोलिजन. नाउ एक्चुअली ए इज मूव विथ रिस्पेक्ट टू बी विथ दिस वेलोसिटी. ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो फिर बाकी क्या रहा? v1 cos theta 1 एंड v2 cos theta 2 ही बाकी रहा बी के साथ कोलिजन करने के लिए. सो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? v रिलेटिव मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. दोनों की डायरेक्शन सेम है तो समेशन करते हैं. मे भी अपोजिट भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा सेम ही होनी चाहिए. अपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन करना है, सेम है तो एडिशन करना है. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? v1 cos theta 1 प्लस v2 cos theta 2. यहाँ पे समेशन या ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? या सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है, समेशन भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन है तो सम लिया है, अपोजिट भी हो सकते हैं तो फिर सब्सट्रैक्शन लेना है, ठीक है? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई. कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, कितने टाइम में कोलिजन होगा, तो कितने टाइम में फाइंड करना है. तो आपको इनिशियल डिस्टेंस उसका पता होना चाहिए. मान लो कि इनिशियल डिस्टेंस कितना है? d. तो फिर टाइम ऑफ कोलिजन t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. इट्स मीन्स डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी जो भी आप फाइंड करते हो यहाँ पे रख देनी, ठीक है? तो इस तरह से आप टाइम ऑफ फाइंड कर सकते हो. कहाँ पे पोजीशन फाइंड करनी है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज कंसिडर्ड एज एक्स ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज कंसिडर्ड एज एक्स बी. एक्चुअल तो यहीं पे कोलिजन होता है ना, यहाँ पे तो होता ही नहीं है, तो एज्यूम किया है हमने. तो फिर फाइंड द सब कोलिजन पॉइंट. डिस्टेंस फ्रॉम ए इज एक्स ए, डिस्टेंस फ्रॉम बी इज एक्स बी. सो पोजीशन ऑफ कोलिजन, पोजीशन ऑफ कोलिजन अगर फाइंड करनी है तो फिर एक्स ए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी एंड एक्स बी इज इक्वल टू वी बी इंटू टी. वी ए इंटू टी एंड वी बी इंटू टी दोनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन कहाँ से लिखनी वही देखना है. दिस वन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ ए एंड दिस वन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ बी. मतलब अगर ए डिस्टेंस काउंट करते हैं तो बी की पोजीशन से, ए डिस्टेंस काउंट करते हो तो फिर ए की पोजीशन. कौन सी डायरेक्शन में वो तो दी हुई है, देखो थीटा 1 थीटा 2. कहाँ पे कोलिजन होने वाला है तो डायरेक्शन, सिर्फ डिस्टेंस काउंट कर, डायरेक्शन तो पता ही है. ए से काउंट करते हो तो फिर थीटा 1 डायरेक्शन में, बी से काउंट करते हो तो फिर थीटा 2 डायरेक्शन, ठीक है? सो ए कौन सी डायरेक्शन में होगा? along theta 1 डायरेक्शन. एंड ये कहाँ से होगा? along
थीटा टू डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो इस तरह से। तो ये पूरी थियोरी है एक्चुअली। तो हम इस मेथड का यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। Okay, let me solve one example based on the theory collision in a plane. Okay, so if the boy 1 is catches the boy 2, then find the theta. मतलब कि boy 1 catch the boy 2. So boy 2 is moving along a straight line perpendicular, and this one is moving somewhere here. So this both are meet at some point like this. See, if you consider where they are meet, then actually both this boy are meet at this point. So we have to finding out this theta. Okay, means the direction of movement of this boy 1, so that boy 1 is able to catch the boy 2. हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे वो कैच करने वाला है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो फिर boy 2 के रेस्ट पे ले लो। चलो, तो boy 2 को हम कैसे लिए है, रेस्ट पे। तो रेफरेंस फ्रेम हो गई, boy 2 का रेफरेंस फ्रेम हो गए, तो रेस्ट पे आ गया। तो उसकी वेलोसिटी किसको दे दो, boy 1 को, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो राइट नाउ डायरेक्शन इज अपवर्ड, मीन्स अलोंग दिस वन। सो boy 1 velocity given in this one 10 meter per second. Okay, actually this plane, both this boy I move like this. This boy 2 is moving along a straight line, and boy 1 moving along this straight line, and both are meet somewhere here like this. Do you understand? Both are moving along a plane, or means on a plane. Okay, so this type of situation. Now take a component of this one. So here this component is what, 20 cos theta, and this component is what, 20 sin theta. If now this boy 2 is at rest, so if boy 1 want to catch the boy 2, then boy 1 must be move along this direction. So both this component are cancelled to each other. So write down this condition of collision. So condition of collision is what, perpendicular components are equal to each other and opposite in direction. So perpendicular component कौन सा है, 20 sin theta, 20 sin theta must be equal to 10. So this 20 is comes in denominator, sin theta is equal to 10 by 20. So sin theta is equal to 10 upon 20. It means is equal to 1 by 2. For what value of theta sin becomes 1 by 2? For what value of theta sin becomes 1 by 2? Then you just go through the trigonometry table. Theta is equal to 30 degree. Sin 30 is equal to what, 1 by 2. Means boy 1 moves along a line which is at a 30 degree from this AB line. Means both this boy join to each other. Okay, मतलब इस लाइन से 30 डिग्री पे बॉय को मूव होना चाहिए. सो दस बॉय 1 कैच द बॉय 2. सो फर्स्ट आंसर. सेकेंड आंसर, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन द बॉय 1 इज कैच द बॉय 2. तो टाइम भी फाइंड करना है. तो रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी है, तो कैंसिल हो गई. तो 20 cos थीटा रिलेटिव वेलोसिटी हो गई. सो वी रिलेटिव, नाउ लेट टेक v relative is velocity of a with respect to b. कौन सी हो गई, 20 cos theta. Put the value. So v relative 20 into cos 30. cos 30 हुआ √3/2. तो ये हो गया v relative is equal to 2 tens. So 10√3 meter per second. So boy 1 moving along this line with the velocity 10√3 meter per second, and initial distance is what, 100 meter. Consider it is d, suppose d 100 meter है, तो टाइम कितना लगेगा. सो टाइम t is equal to d upon v relative. सो t is equal to d 100 है, ये हुआ 10√3, 0 0 कैंसल आउट. सो टाइम हो गया 10 upon √3 सेकेंड. ठीक है, वेरी सिंपल. 10 upon √3. आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम दस बॉय 1 कैच द बॉय 2. वेयर इट इज कैचिंग. सो आप ए भी फाइंड कर सकते हो, आप ए भी फाइंड कर सकते हो. तो इसको आप एक्स ए ले लो एडिशनल है, और इसको आप एक्स बी ले लो सपोज. सो पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो, अभी पूछा नहीं है लेकिन फाइंड कर सकते हैं. पोजीशन एक्स से कितना हो जाएगा,
वी ए इंटू टी, सो वी ए कितना है एक्चुअली 10t, टी कितना है 10/√3, तो फिर x से कहाँ पे कितना आ गया 200/√3, 200/√3 मीटर। यहाँ पे ऐसा लिखना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ ए इन अ डायरेक्शन, what is this direction? Theta. Theta means what? 30 degree. In a direction 30 degree from boy 1 to boy 2 line. Okay, मतलब आप वो सब लिख लेना अपने आप, 30 डिग्री फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब दोनों बॉय को जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करती है वहां से 30 डिग्री। ओके, और एक्स बी भी फाइंड कर सकते हो, तो एक्स बी कितना हो जाएगा वी बी इंटू टाइम, वी बी कितना है 10, सो 10 इंटू वो कितना आया 10/√3, इतना आंसर आ गया 100/√3 मीटर। ये जब आंसर लिखते हो तो आपको लिखना है फ्रॉम बी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ बी, मतलब बी की पोजीशन से यहाँ पे कोलिजन होगा। ठीक है, मतलब कोलिजन तो नहीं होगा लेकिन वो बॉय 1 बॉय 2 को कैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। एक्जैक्टली सेम मेथड, बट यू जस्ट अप्लाई द सेम थ्योरी व्हेन यू जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन इन अ प्लेन। आप इस थ्योरी का यूज करो और इसी कंडीशन को यूज करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ओके, ऑल ऑफ यू गाइस राइट डाउन दिस प्रॉब्लम इन योर बुक्स। Okay, let me discuss a new topic, condition of collision in a plane in a vector form. Actually first we discuss in a scalar form, we just gives a reference, we using the scalar method. Okay, now this one is a vector method, and you remember this equation directly because sometimes this equation is directly asking in examination as a MCQ, तो आपको जो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो आपको याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, जैसे if you want then you just use it. Okay, otherwise this equation is directly asking in examination. Okay, sometime in a MCQ format. So let me derive this relation. What is the condition of collision in a plane in a vector form? मतलब वेक्टर का यूज करने वाले हैं। सो सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो, you just consider this y axis and this one is x axis. So this is xy plane. So object A is somewhere here. Consider this first object is somewhere here A, and second object you consider somewhere here. So this is the second object B. Generally how we just gives the position of this both this one. So position of A from origin is considered to be RA. Position of B from origin is considered to be RB. ऐसा मान के चलते हैं कि A की पोजीशन RA है, B की पोजीशन RB है। Now A is moving in some direction. Consider suppose A is moving somewhere here with velocity v in vector form. Okay, everything is in vector form. Now B is moving in this direction, maybe with some velocity vb. It is also in a vector form. So where they are collide to each other. So actually maybe if they are collide to each other, then the possibility is only one. So this both the objects are collide at this point. If it is collide, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन करने वाले हैं तो कहाँ पे कोलिजन होगा? यहाँ पे। सो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कोलिजन, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कोलिजन मतलब यहाँ पे कोलिजन करने वाले, लेकिन ऐसा तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी रेफरेंस फ्रेम वेक्टर के फॉर्म में रेफरेंस फ्रेम का यूज करते हैं। अगर आप बी को रेस्ट पे लेके आओ तो फिर ए को कोलिजन करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे जाने पड़ेगा। तो लेट्स कंसीडर दिस बी इज एट रेस्ट, रेफरेंस फ्रेम। बी को हम कैसे लेके आए? रेफरेंस रेस्ट पे लेके आए, तो अभी ए को कहाँ पे जाना पड़ेगा कोलिजन करने के लिए? तो ए मस्ट बी मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब ए को यहाँ पे जाना, मतलब कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो भी है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी कहाँ पे होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर बी रेस पे आ गया तो फिर ए को कहाँ जाने पड़ेगा? यहाँ यही जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोलिजन होगा, ऐसा मान के चलते। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग दिस डायरेक्शन. So if you are just choose this is reference frame, so velocity of B is given to the A in opposite, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे opposite direction में दे दो. चलो
सो दैट इज VB। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसको हम RAB बोलते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, RAB। तो मतलब कि RAB की डायरेक्शन और VAB की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इस पोजीशन ऑफ A to B, the vector represent from A to B is given as RAB. Vector given from A to B is given as a RAB। मतलब कि इस ट्राइंगल का यूज करो। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ RAB and direction of VAB must be the same. So here the condition is what? Direction of RAB is equal to डायरेक्शन ऑफ VAB। ये कंडीशन है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन है। लेकिन डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। चलिए, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट। देखो, वेक्टर सेम नहीं है, डायरेक्शन ही सेम है, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकता है ना, तो फिर डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज द कंडीशन, यूनिट वेक्टर ऑफ RAB इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ VAB। दोनों का यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए, सेम, यही आंसर है। यूनिट वेक्टर ऑफ RAB इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वेक्टर ऑफ VAB। अगर ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही रहता है, as we know, as we studied during a vector session, thus unit vector having a magnitude is what, 1। so इसकी डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर एक्चुअली, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज VAB एक्चुअली हियर, let's use this first triangle, RA plus RAB is equal to RB। use the triangle rule, okay। so from figure, triangle rule of vector, वेक्टर का ट्राइंगल रूल क्या है, RA प्लस RAB इज इक्वल टू RB। सो RA प्लस RAB इज इक्वल टू RB। मतलब कि फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, ऐसे हुआ ना, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड वेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट की टेल है और RAB का हेड तो यहीं पे होगा ना, ऐसे RAB का हेड यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो RA प्लस RAB इज इक्वल टू RB। इसमें से RAB फाइंड करो, तो RAB इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाओ, सो RB माइनस RA, ऐसा हो गया ना, RB माइनस RA। तो ये तो फर्स्ट हो गया RAB का। अभी VAB फाइंड करो, रिलेटिव वेलोसिटी, वो तो डायरेक्टली पता ही है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये तो डायरेक्टली इक्वेशन पता है, डायरेक्ट लिख दो, VAB इज इक्वल टू व्हाट, VA माइनस VB। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, what is equation 1, unit vector of RAB, unit vector of RAB means vector RAB upon its magnitude। so vector RAB upon its magnitude is equal to unit vector VAB। unit vector VAB means what, vector VAB upon its magnitude। so upon its magnitude, magnitude represent like this as we studied during a vector, okay। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, फाइनली आंसर हो जाएगा। what is RAB, RB minus RA, so RB minus RA upon its magnitude, so magnitude RB minus RA is equal to VAB means what, VA minus VB, उसका मैग्नीट्यूड रखो और मैग्नीट्यूड मीन्स मोड कर दो, सो VA माइनस VB। ये कंडीशन है कोलिजन की, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली इक्वेशन याद रखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डायरेक्टली MCQ में आता है, ऐसे कोई ऐसी इतनी डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन डायरेक्टली। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रख लो, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए।
क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों के सेम ही है ना, तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम हुआ तो फिर आंसर आ गया। दैट इज अ कंडीशन ऑफ कोलिजन इन अ प्लेन इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाले हैं वो तो स्केलर फॉर्म से ही सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा है, स्केलर फॉर्म से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वही इजी रहता है। ये तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म की कभी कभी इस टाइप के एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं तो फिर ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ यू गाइस जस्ट राइट डाउन दिस वन। Okay guys, let us discuss one important topic, and this topic is quite helpful in this chapter as well as in some next chapters. Okay, in 11th standard we are discussed about it later on, and that is the velocity of approach and velocity of separation. In short format, we call it is a VOA, velocity of approach, and that is called a VOS, velocity of separation. What is the meaning of VOA and VOS? VOA means velocity of approach. Approach means these objects are coming nearer to each other. The objects are coming nearer to each other, means approaching each other. And separation means what? Objects are moves away from each other. Okay. So with what rate the objects are coming closer to each other? That's called a velocity of approach. And with what rate the objects are moves away from each other? That's called a velocity of separation. Okay, so let's we write thus with what velocity objects are coming near to each other. Okay, with what rate means with what velocity objects are approaching to each other. Objects are coming near to each other, or we call it is objects are approaching to each other. This is called a velocity of approach. इसको क्या बोलते हैं हम? velocity of approach. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस वेलोसिटी से नजदीक आ रहे हैं, द ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग नियर टू मींस अप्रोच टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन इससे एग्जैक्ट अपोजिट होगा, विथ व्हाट रेट द ऑब्जेक्ट्स आर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? विथ व्हाट रेट और विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट velocity objects are moves away from each other. Away means what? Away means what? सेपरेट, मतलब वो किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें और रिलेटिव वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। या जो वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन है वो एक टाइप से रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्ट कंसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं करना है, एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल मान लेते हैं इन विच वी हैव टू फाइंडिंग आउट दिस बोथ दिस वन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो सिंपल है, you consider this objects A moving with velocity v1, that's another objects B moving with velocity v2। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। तो यहाँ पे ए है और ए बी है, ए v1 है, ए v2 है, पता नहीं कौन ज़्यादा है कौन स्मॉलर है, लेकिन आप ऐसा मान लो। Now if you just consider any one of these objects is coming to rest, any one of this, okay, for more understanding only. So consider suppose it is comes to the reference frame, okay, तो ये रेस पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी किसको देनी है? ए को। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट में। सो दस v2 इज राइट हैंड साइड, गिव्स दिस वेलोसिटी टू द ए इन लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट इज v2। ओके, अभी तो बी रेस पे है और ए के पास दो वेलोसिटी v1 एंड v2, v1 एंड v2। सो ड्यू टू दिस v1 दिस ऑब्जेक्ट्स है कमिंग नियर टू b। v1 जो है वो ए को b से नजदीक ला रहा है, और v2 जो है वो b है, और b ए को b से दूर ले जा रहा है।
means what? Thus v1 is responsible to thus decreasing this distance, and v2 is responsible to increasing this distance, क्योंकि v2 इस डायरेक्शन में अभी b रेस पे है, ऐसा हमने कंसिडर किया, ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम किया है कि b रेस पे है, और फिर v1 है, उससे डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो रहा है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डिक्रीजेस बाय एनी वेलोसिटी, वी कॉल इट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. If the distance between the two objects is increases by any velocity, we call it is a velocity of a separation. Then how to write the velocity of approach here? So in this case, velocity of approach is equal to this. Write down the first velocity. Write down the first velocity here, in which you just getting the answer. So that distance is decreases. So first velocity is what? v1. क्यों? क्योंकि v1 से डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस. तो इंक्रीज किससे हो रहा है? v2 से. तो माइनस v2. ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इसी केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चाहिए, तो सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे इंक्रीज किससे हो रहा है? v2 से. तो सेपरेशन में इंक्रीजिंग लिखना है. फर्स्ट इंक्रीज किससे हो रहा है? v2 से. तो फर्स्ट v2 लिखो माइनस v1, क्योंकि v1 से डिक्रीज हो रहा है. अगर दोनों से इंक्रीज होता है या फिर दोनों से डिक्रीज होता है तो दोनों ही प्लस होने ना, माइनस लिखना है, ठीक है. अगर दोनों से डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, क्या लिखना है? दोनों ही प्लस और माइनस लिखना है. यहाँ पे माइनस ही लिखना है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. अगर दोनों v2 भी इस डायरेक्शन में, इफ v2 इज अगेन इन अ सेम डायरेक्शन v1 एंड v2, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 भी आ सकता है. आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? If any velocity decreasing the distance, due to the any velocity, the distance between the two objects is decreasing, then this is velocity of approach. If it is increases, then that's velocity of separation. So with what rate this distance between these two objects decreases? v1 minus v2. And with what rate this distance is increasing? v2 minus v1. It means velocity of approach is equal to minus velocity of separation. For the given case, आप ऐसा लिख सकते हो, velocity of approach is equal to minus velocity of separation. Velocity of approach is equal to minus velocity of separation. थोड़ा एग्जाम्पल काउंट कर सकते हैं. चलो एग्जाम्पल 1, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच फाइंड करना है. केस ऐसा कुछ है, ए है, ए बी है, ए इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ए इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से. चलो you have a 10 second and you just to solve out this problem. Your problem time starts now. Okay, let's see. This A is moving towards right hand side, B is moving towards left hand side. ठीक है, तो B को रेस पे ले गया, रेफरेंस फ्रेम B को रेस पे ले गया है, तो उसकी वेलोसिटी एक को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में, सो 3 मीटर पर सेकेंड. सो what about velocity of approach? So here this velocity of approach is equal to, see, 2 जो वेलोसिटी है उससे डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, 3 से भी डिक्रीज ही हो रहा है. Thus both velocity are responsible to decrease the distance because both are towards the B. So here velocity of approach is 2 plus 3 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड. ऐसे आप लिख सकते हो. ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? विथ व्हाट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग नियरर टू ईच अदर means closer to each other. Nearer means what? Closer to each other. If the both objects are coming closer to each other, that's the velocity of approach. यहाँ पे दोनों वेलोसिटी ऐसी है कि जैसे ऑब्जेक्ट्स कमिंग टू नियर ईच अदर, मतलब दोनों वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो रहा है. तो फिर यहाँ पे क्या है? 2 + 3 सेम डायरेक्शन में, इसलिए ठीक है. दूसरा का एग्जांपल देखते हैं. चलो एग्जांपल 2, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. ओके, देन आफ्टर सी द सॉल्यूशन. फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अप्रोच ही लेते हैं, सेपरेशन बाद में देखते हैं. अप्रोच और केस कुछ ऐसा है, ए है यहाँ पे बी है, ए इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. ए बी इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 सेकेंड. हाँ, लेट्स सी.
यू जस्ट टेक एनी वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इज कमिंग टू रेस्ट, एनी वन ऑफ दिस, ओके। ए को भी ले सकते हो, बी को भी ले सकते हो। चलो इस बार ए को लेते हैं, काफ़ी टाइम से बी ले रहे, तो इस बार ए को लेते हैं। चलो ए इज कमिंग टू रेस्ट रेफरेंस पे, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3, उसको यू जस्ट गिव दिस वेलोसिटी ऑफ ए गिव टू द बी इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट नाउ इट इज लेफ्ट हैंड साइड, गिव टू द बी इट्स अ 3 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ दिस ए इज comes to the condition of rest, ए को हमने क्या मान लिया, रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है और ड्यू टू दिस 5 मीटर पर सेकेंड बी इज कमिंग नियर टू ए, है ना, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स नियर आ रहा है, और 3 मीटर पर सेकेंड से कहाँ पे जा रहा है, देखो दूर, क्योंकि ये यहाँ पे रेस्ट पे, बी इस तरफ आएगा तो फिर डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इस तरफ है तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो 5 से नियर आ रहा है, 3 से दूर जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 से नजदीक आ रहा है तो 5, 3 से दूर जा रहा है तो 3 पर माइनस लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है और नजदीक ला रहा है, और मैं तो अप्रोच फाइंड करना है, तो अप्रोच किससे हो रहा है, 5 से, और सेपरेशन किससे हो रहा है, 3 से, तो अप्रोच लिखते हो तो 5 माइनस 3 होगा। अप्रोच लिखते हो तो क्या होगा, 5 माइनस 3, आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand how to finding out the velocity of approach? आपको साइन जो है वो अपने हिसाब से रखनी है, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव ही रखो, यहाँ पे पॉजिटिव ही रखो। अगर किसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग नियर टू ईच अदर, यू जस्ट पुट द साइन पॉजिटिव। इफ यू हैव टू फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कर रहे हो और ऑब्जेक्ट्स नजदीक आ रहे हो तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव रखो, दूर जा रहे हो तो उस वेलोसिटी को नेगेटिव रखो, इन केस ऑफ अप्रोच। बट इन केस ऑफ सेपरेशन, दूर को पॉजिटिव रखो, नजदीक को नेगेटिव रखो। चलो देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो कि ए है, यहाँ पे मान लो कि बी है, ए इसको इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ए इस तरफ जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे। चलो मतलब दोनों ही जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी इसमें सेपरेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चलो तो आप किसी भी एक को रेस पे ले लो। चलो इसमें भी एक को लेते हैं, तो रेफरेंस फ्रेम आ गया, एक ऐसा आ गया रेफरेंस फ्रेम, मतलब रेस पे आ गया। सो जस्ट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ए टू द बी इन opposite direction. So right now it is right hand side, gives the velocity to the b in opposite means left hand side, 3 meter per second, ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ what you just find here, you just understand what you have to find. You want velocity of separation. आपको क्या फाइंड करना है, सेपरेशन। तो सेपरेशन को पॉजिटिव रखना है, अप्रोच को नेगेटिव रखना है, ओके। इफ यू जस्ट वांट टू फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर अप्रोच फाइंड कर रहे हैं तो फिर अप्रोच वेलोसिटी को पॉजिटिव रखो, यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी को क्या रखना है, पॉजिटिव, और एंड सेपरेशन वेलोसिटी को क्या रखना है, सेपरेशन वेलोसिटी को इसमें क्या रखना है, नेगेटिव, ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर इसमें काउंट करते हो तो फिर यहाँ पे सेपरेशन को पॉजिटिव रखना है और अप्रोच को नेगेटिव रखना है, ठीक है। जो वेलोसिटी फाइंड करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको रखनी है, ठीक है। सो हियर दिस 3 meter per second, due to this 3 meter per second object B is coming towards A, see, so due to 3 meter per second distance is decreases, but due to 7 meter per second distance is increases. So here we write down the answer, velocity of separation 3 डिक्रीज कर रहा है और आपको फाइंड करना है सेपरेशन, मतलब 3 यहाँ पे अप्रोच है, यहाँ पे 3 अप्रोच है, अप्रोच को क्या रखना है, नेगेटिव, सो इज इक्वल टू -3, और 7 यहाँ को सेपरेट करना है, यहाँ पे 7 क्या कर रहा है, सेपरेट, सो ड्यू टू द 7 ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेट टू ईच अदर, सो सेपरेशन में सेपरेट को क्या रखना है, पॉजिटिव, तो उसको रखो पॉजिटिव, तो +7, आंसर क्या हो गया, 7 - 3 4 मीटर पर सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड? Do you know how to just put this value? Let's solve another example to regarding this, understand this concept more. Example 4, find again velocity of separation. इसमें भी सेपरेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। चलो
ए ले लो यहाँ पे, बी ले लो यहाँ पे। ए इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ए इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे जा रहा है। चलो बी 2 इस तरफ जा रहा है, 3 इस तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है। You just gives a reference frame to any one of these objects, maybe A, maybe B। चलो किसको देते, B को देते, यहाँ पे A को दिया था। चलो लेट्स कंसिडर दिस B is suppose coming to rest। आप किसको भी दे हो, आपका आंसर में कोई चेंज नहीं रहेगा, किसको भी आप दोनों में से किसी को भी रेफरेंस फ्रेम दे सकते हो, ठीक है। चलो दैट्स वन इज एट rest, so you just gives the velocity of B to the A in opposite direction। right now it is right hand side, gives it is to the left hand side 3 meter per second। क्लियर है सबको। चलो फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करना है। सेपरेशन में सेपरेशन को पॉजिटिव रखो। सो just you just tell me 2 is separate or is due to this 2 objects A is become separate from B or is approaching to the B। so see opposite means यहाँ पे separate कर रहा है, 3 भी क्या कर रहा है, separate ही कर रहा है ना, दोनों ही separate कर रहे हैं। देखो ये 2 की वजह से वो दूर जाएगा, 3 की वजह से भी दूर ही जाएगा, और दोनों की वजह से दूर जा रहा है मतलब सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेट जितनी भी वेलोसिटी उसको पॉजिटिव रखो। यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी नहीं है, तो अप्रोच नहीं है तो वो जाने दो। तो यहाँ पे 2 को भी प्लस रखो, 3 को भी प्लस रखो, आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये तो 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू गाइस फर्स्ट नोट दिस प्रॉब्लम इन योर बुक्स, नोट दिस थियोरी इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी सॉल्व सम एग्जांपल बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन इन 1D। okay, the same problem we have to solve in a 2 dimension also, but concept is similar, velocity of approach and separation, only we just solve this some problem based on when the objects are moving in a 2 dimension। that's all, this example is in a 1 dimension, means along the same line। See, okay, first you note this, then after we solve the problem based on a 2D। okay guys, let's come to this velocity of approach and separation in 2 dimension। when you just consider the 2 dimension, then this we have to use the one single knot, in simple knot we write first। what we have to consider here, if you consider the 2 dimension, then you just take velocity of approach and separation in 2 dimension along the line joining the 2 objects। okay, so whenever you just count this one, so here we take velocity of approach or velocity of separation in 2D, in 2 dimension along the line joining the 2 objects। मतलब यहाँ पे आपको सेपरेशन और वेलोसिटी कहाँ पे लेना है, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को कहाँ, जो भी लाइन ज्वाइन करते हैं उस लाइन पे लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। प्रॉब्लम स्टेज में ऐसा मान लो कि एक्स वाई डायरेक्शन है, ठीक है, तो 2 डायमेंशन हो गया। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट्स ए है और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट्स बी है। कंसिडर लाइक दिस, एंड दिस ऑब्जेक्ट्स यू ज्वाइन दिस लाइन, यहाँ पे एंगल θ1 है, यहाँ पे एंगल θ2 है। जो ए ऑब्जेक्ट है और v1 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी ऑब्जेक्ट और v2 से इस डायरेक्शन में, ऐसा मान के चलते हैं। तो एक गिवन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इतना दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो ब्लू पेन इज द सॉल्यूशन फॉर अस। नाउ v1 इज अलोंग दिस लाइन, सो इससे अप्रोच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ बी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ठीक है। तो v1 से अप्रोच नहीं कर, नहीं तो ये v2 से अप्रोच कर रहा है। तो v1 और v2 अप्रोच की वेलोसिटी नहीं है। okay, you just gives a component of v1 along this line, you just take component of v2 along this line। so यहाँ पे component क्या आ गया, v1 cos θ1। यहाँ पे भी component ले लो, तो component क्या आ गया, v2 cos θ2। so due to this v1 cos θ1, object is comes closer to the b, and due to this b, this one is closer to the a। मतलब यहाँ पे ए भी क्लोजर आ रहा है, यहाँ पे ए भी क्लोजर आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी को भी रेफरेंस फ्रेम दे दो। चलो
तो उसकी वेलोसिटी एक को दे दो अपोजिट में, मतलब यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे दे दो, तो क्या हो गया v2 cos। तो ऑब्जेक्ट्स भी अगर रेस्ट पे है तो दोनों ही से क्लोज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, क्लोज है, तो आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, इससे भी क्लोजर आ रहा है, इससे भी क्लोजर, तो अप्रोच में अप्रोच की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, सेपरेशन की वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे दोनों ही अप्रोच है, तो आंसर क्या होगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। दिस वन इज अवर आंसर। ठीक है, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे होमवर्क में आप लिख लो, होमवर्क में एक प्रॉब्लम लिख लो। चलो यहाँ पे ऐसे है कुछ कंडीशन, y x, ऑब्जेक्ट्स ए यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट्स बी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस लाइन जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, एक ही वेलोसिटी आप मान लो इस डायरेक्शन में है √3 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, √3 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। चलो मतलब अब है इस कंडीशन है, ठीक है, उस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी आप मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक ही वेलोसिटी यहाँ पे √3 मीटर पर सेकेंड है, बी की भी आप मान लो कि √3 है। चलो आप 4 ले लो, वो अच्छा रहेगा। तो बी की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी कितनी है, √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। थियरी सेम ही है, you just take a component along the line joining of those two objects and this is the d side, this two component is d side, velocity of approach and separation। अगर अप्रोच आया तो फिर उसको पॉजिटिव लेना है, सेपरेशन आया तो उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो आप वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, दैट्स फर्स्ट वन। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कस ऑन अनदर एग्जांपल, सेपरेशन। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ले लो, सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, यू जस्ट टेकिंग अ कंपोनेंट a is somewhere here, you consider the component b is objects b is somewhere there and this angle is θ1, this angle is θ2। दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, ऐसा ले लो। चलो तो a वेलोसिटी जो है वो है v1 और a वेलोसिटी जो है v2, ऐसा कुछ है। चलो, सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो this v1 and v2 does not decide the separation or approach. Here see, you just taking a component to get the values of approach and separation in 2 dimension. You just taking component of velocity इसमें ऐड कर दो along the line joining the two objects। ओके, आपको अप्रोच और सेपरेशन फाइंड करना है 2D में, देन यू टेकिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे कंपाउंड ले लो, चलो v1 यहाँ पे है तो इसका कंपाउंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, एडजेसेंट कंपाउंड, तो आंसर क्या होगा, v1 cos θ1। ब्लू पेन इज द सॉल्यूशन ना। v2 यहाँ पे तो इसका कंपाउंड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हाँ कि ना। ओके, इसका कंपाउंड यहाँ पे कभी नहीं बनता पर यहाँ पे बनता है, एंगल θ2 है तो एंगल भी कितना रहेगा, θ2 रहेगा, तो ये हो जाएगा v2 cos θ2। पता चला, फिर से बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड कभी यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, लाइन तो वही रहेगी, देखो है ना। वी जस्ट टेकिंग कंपाउंड along the same line, you taking a component somewhere here, not here, do you understand? Okay, चलो तो फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो यू जस्ट टेकिंग एनी कंपोनेंट एट रेस्ट, यू टेकिंग एनी कंपोनेंट एट रेस्ट, मे बी आप बी को भी ले सकते हो, ए को भी ले सकते हो। चलो कि अभी इसमें ए को लेते हैं, यहाँ पे बी को लिया था तो यहाँ पे ए को लेते हैं। चलो दैट्स वन इज अ रेफरेंस फ्रेम रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी किसको देनी है,
If A is coming to rest, then gives the velocity of A to the B in opposite direction. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में दे दो. चलो तो कितनी है वो V1 cos theta 1, V1 cos theta 1. So now A is coming to rest, and by this velocity objects B comes closer to A, and by this velocity objects B moves away from the A, then velocity of separation is equal to approaching velocity in separation is negative, separation velocity in separation is पॉजिटिव. तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है क्योंकि सेपरेटिंग है, ए नेगेटिव क्योंकि अप्रोच है. देखो ए वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है, ए वेलोसिटी से सेपरेशन हो रहा है. आपको क्या फाइंड करना है? सेपरेशन. तो इसको नेगेटिव लेना है. सो माइनस V1 cos थीटा 1, ठीक है. और इससे सेपरेशन हुआ है तो प्लस V2 cos थीटा 2. तो ये हुआ आंसर. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर एक्चुअली? सो आप एक प्रॉब्लम होमवर्क में कर लो. चलो सेपरेशन का फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, एक्स एंड वाई. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बी है. इन दोनों का जो भी एंगल बनता है उसको ले लो आप 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है. दोनों की जगह पे 45 डिग्री है. दोनों की वेलोसिटी मान लो कि ऐसे कुछ है. यहाँ पे वेलोसिटी है 2√2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी है 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो ये सॉल्व करना प्रॉब्लम, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कर देना. दैट्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन 2D, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन 2D. यूज द सेम कंसेप्ट. Along the line up in separation, velocity of separation velocity is positive, approach velocity is negative. In velocity of approach velocity is positive, separation velocity is negative. Okay, all of you guys note this full topic in your books properly.